حضرت اقدس حضرت مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اس کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہی رہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ محبت کوئی نفسانی شیطانی محبت ہو. جو اچھی محبتیں ہوتی ہیں، کسی اللہ والے سے کسی کو محبت ہے، کسی عالم بزرگ سے کسی کو محبت ہے، اپنے والدین سے بندے کو محبت ہوتی ہے، تو بہت عرصے تک دیکھنا نصیب نہ ہو تو جب دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے تو بندہ دیکھتا رہتا ہے اور دیکھنے سے جی نہیں بھرتا. اور اگر ایسا ہو جائے کہ محبوب کو دیکھنا اسباب کے درجے میں ناممکن ہو تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے محبوب کے آثار اور نشانیوں کو دیکھا جائے اور اپنے آپ کو تسکین پہنچائی جائے. خدا نخواستہ کسی ماں کا بیٹا فوت ہو جائے تو ماں سمجھتی ہے کہ اب اس بیٹے کا دیدار میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ یادگاریں ہیں جسے وہ اپنے گھر میں محفوظ رکھتی ہے. ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا لیکن میرے بیٹے کے جوتے جہاں رکھے ہوئے تھے وہاں پڑے رہیں گے، کپڑے جیسے لٹکے ہوئے تھے ویسے ہی لٹکے رہیں گے. وہ جاتی ہے اپنے بیٹے کے کمرے میں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی ہے، کبھی بیٹے کے جوتوں کو دیکھتی ہے، کبھی کپڑوں کو دیکھتی ہے، کبھی الماری کو دیکھتی ہے. کچھ دیر کے بعد کچھ سکون مل جاتا ہے. اگرچہ بیٹا دیکھنا ممکن نہیں ہوتا لیکن بیٹے کے آثار اور نشانیوں کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ اس کو تسکین حاصل ہو جاتی ہے. بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کبھی اپنے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. محبت تو بندے کو مجبور کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی محبت سے مجبور ہو کر تو کہا تھا کہ ارینی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب پروردگار کا دیدار کروں. میرا وہ رب جس کو دیکھے بغیر میں شدید گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزہ رکھتا ہوں، شدید سردی کے موسم میں آدھی رات کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتا ہوں، پسینہ بہا بہا کے کماتا ہوں، بچا بچا کے جمع کرتا ہوں. سال گزرنے کے بعد اسی محبوب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جمع پونجی فقراء مساکین کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہوں. کبھی اس محبوب کا دیدار تو مجھے نصیب ہو جائے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں
कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज़ में। कभी आप मेरे सामने तो आ जाएं, मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि अगरचे मैं गुनाहगार हूँ लेकिन अपने महबूब के सामने कैसे सजदे करता हूँ। लेकिन मुमकिन नहीं है अपने अल्लाह को देखना इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर एहसान फरमाया कि रूए ज़मीन पर अपनी कुछ निशानियाँ, कुछ यादगारें मुतअय्यन फरमाई हैं कि अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हो, नहीं देख सकते, तो मेरी उन निशानियों को, उन यादगारों को देखकर अपने आप को तस्कीन पहुंचा सकते हो, जिनको हम शाइरुल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये अल्लाह की यादगारें हैं। उन यादगारों में से सबसे बड़ी यादगार मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर बैतुल्लाह है, फिर उसके साथ सफ़ा मरवा हैं, मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात हैं। ये अल्लाह के शाइर हैं। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। तो लोग जाते हैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाले उन यादगारों को देखने के लिए बेकरार और बेताब होते हैं। और हकीकत में यही है कि जब बंदा पहुंच जाता है एक मर्तबा हरम शरीफ में, बैतुल्लाह बंदे के सामने होता है, बंदा देख रहा होता है, एक सुकून बंदे पर तारी हो जाता है। फिर बंदे का जी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं और इस बैतुल्लाह के साथ चिमट जाऊं, इसके साथ मैं लिपट जाऊं, जिस तरह की एक बच्चा अपनी माँ के साथ लिपटने की कोशिश करता है। ये वो शाइर हैं जो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर हैं। लेकिन आपको पता है कि मक्का मुकर्रमा जाना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। जाने के लिए आपके पास वसाइल भी होने चाहिए, वक़्त भी फारिग करना होता है, सेहत का भी होना ज़रूरी है। फिर अल्लाह ने हमारे ऊपर एक और एहसान फरमाया कि हर महल्ले में, हर बस्ती में, हर गांव में जो मस्जिद होती है, इस मस्जिद को भी अल्लाह ने अपने शाइर में से करार दिया है कि ये भी मेरे एक निशानी है। ठीक है, आप बैतुल्लाह नहीं जा सकते, आप सफ़ा मरवा के शाइर का दीदार नहीं कर सकते, इतना तो आप कर सकते हैं कि अपने महल्ले में, अपनी बस्ती में, मेरे घर में आ जाएं, ये भी मेरी निशानियों में से है। लिहाजा जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समा की फिल्मा, मुमिन मस्जिद में ऐसा पुरसुकून हो जाता है जैसा कि मछली पानी में पुरसुकून होती है। किसी बंदे ने मालूम करना है कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, तो वो ये मालूम करे कि मेरे दिल में अल्लाह के घर की मोहब्बत कितनी है, अल्लाह के घर यानी मस्जिद की मोहब्बत कितनी है। दिल में मस्जिद की मोहब्बत जितनी होगी उतनी ही उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत तस्लीम की जाएगी। अब कोई बंदा कहे कि मुझे तड़प तो बहुत है, अल्लाह का तो मैं बड़ा मुहिब हूँ, लेकिन अल्लाह के घर से कोई मोहब्बत नहीं है। 5 मरतबा अल्लाह के घर से बुलावा आता है कि अल्लाह के घर में हाजिरी दे दो, और हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम अल्लाह के घर में हाजिरी दें, तो मोहब्बत का दावा झूठा है। मजनून कहे कि लैला से मुझे मोहब्बत है, लेकिन लैला के घर और दर दीवार मुझे अच्छे नहीं लगते। हर बंदा कहेगा मजनून तू झूठा है, तू सच्चा मजनून नहीं है, वरना लैला के दर दीवार को बोसे देना अपने लिए सआदत समझता। अतूफ़ु अला जिदारि दियारि लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा वमा हुब्बु दियारि शग़फ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा। और मजनून कहता है कि मैं लैला के घर का तवाफ करता हूँ, कभी इस दीवार को बोसे देता हूँ, कभी उस दीवार को बोसे देता हूँ। ये दर दीवार की मोहब्बत ने मेरे दिल में घर नहीं कर रखा है, वो घर के अंदर रहने वाली लैला की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। तो अगर मजनून को लैला के घर और उसके दरो दीवार से इतनी मोहब्बत है, तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे को अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत क्यों नहीं है। अल्लाह का हम पर एहसान है। हमारी गांव में, बस्ती में, महल्ले में, शहर में जा बजा अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां हमारे लिए मुतय्यन फरमाई हैं। आप आए मेरे घर में, आपको सुकून भी मिल जाएगा, मेरे दीदार की एक झलक आपको नसीब हो जाएगी। लिहाजा अल्लाह घर के साथ ताल्लुक़ और वाबस्तगी ये ईमान की अलामत है।
اور یہ محبت الہی کی علامت ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. وہ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں تو وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، روز آخرت پر ایمان لانے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد کی خدمت کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا انتظام کرتا ہے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اذا رأیتم احدا یتعاہد مسجدا فاشہدوا لہ بالایمان. جو بندہ جس کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کی خدمت کرتا ہے، انتظام و انصرام کرتا ہے، تو تم اس کی ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. میرے بھائیوں، وہی لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، مسجدیں بنوانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. یہ بندوں کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ جس کا سرمایہ، جس کا وقت، جس کی صلاحیتیں اپنے گھر کی تعمیر یا آبادی کے لیے قبول کر لیتا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. واللہ ہم میں سے سارے لوگ کہہ دیں کہ ہم نے نہ مسجد بنوانی ہے، نہ ہم نے مسجد کھولنی ہے، نہ مسجد میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، پھر بھی اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، مسجد کے لیے ہم نے جگہ وقف کر دی، زمین دے دی، یا ہم نے اپنا سرمایہ لگایا، یا مسجد بنانے میں اپنی صلاحیتیں استعمال کر دی، اپنا وقت استعمال کر لیا، تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوگا. لہٰذا اللہ کا احسان ہوتا ہے اس بندے پر جس کو مسجد کی خدمت کے لیے قبول کر لیتا ہے. اور یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ ایمان کے بچاؤ کے مراکز ہوتے ہیں. مسجدوں کے ساتھ وابستگی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ. اگر مسجد کا بنانا ایمان کی علامت ہے تو مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا یہ بھی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب پورے حشر کے میدان میں ایک بالش کے برابر سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، شدت کی گرمی پڑ رہی ہوگی، اس وقت کچھ ایسے سعادت مند ہوں گے جن کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا. اور ان سعادت مندوں میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس کا دل دنیا میں ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا، مسجد کے ساتھ ہر وقت معلق، مسجد کے ساتھ وہ بندہ وابستہ رہتا تھا. مسجد میں آیا تو پھر مسجد سے وابستہ، مسجد سے باہر بھی چلا گیا، اپنے گھر میں گیا تو دکان پہ گیا، جہاں کہیں تو گھڑی کو بار بار دیکھتے ہیں کب آذان ہوگی، میں نے دوبارہ مسجد میں جانا ہے، مسجد کے بجلی کا بل آیا ہوا ہے، مسجد کی صفائی کا مسئلہ ہے، تو پنکھا ہے، تو بٹن ہے، تو ٹوٹی ہے، تو وضو خانہ ہے. یہ جو دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا. اور میرے بھائیو، یہ جو مسجد ہوتی ہے بظاہر آپ کہتے ہوں گے یہ مولوی صاحب کی مسجد ہے، یہ فلاں لوگوں کی مسجد ہے، اور فلاں برادری والوں کی مسجد ہے. آج تو ہم یہ فرق کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ فرق نہیں ہے. لہٰذا دنیا میں جو مسجدیں ہیں قیامت کے دن یہ تمام مساجد ان کو بیت اللہ کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور یہ ساری مسجدیں بیت اللہ میں ضم ہو جائیں گی، مل جائیں گی. تو اگر آج آپ اپنا سرمایہ کسی مسجد میں استعمال کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ یہی سرمایہ آپ کا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے قبول ہو رہا ہے. قیامت کے دن آپ کو بیت اللہ کے معماروں میں شامل کیا جائے گا. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے گھر کے سامنے راستے کے کنارے پہ ایک مسجد بنوائی تھی. مسجد ایسی تھی کہ اس کی دیواریں بھی نہیں تھی اور چھت بھی نہیں تھی، دروازے اور کھڑکیاں بھی نہیں تھی. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی مسجد تھی کہ دیوار بھی نہیں تھی، دروازے نہیں تھے، کھڑکیاں اور چھت بھی نہیں تھی. جی ہاں، اس بندے نے اپنے گھر کے سامنے
7 पत्थर ऐसे रखे हुए थे और ये निशानात थे कि इन पत्थरों के दरमियान वाली जगह ये मस्जिद है। और बस बाकी न वो बेचारा नमाज पढ़ता था, न और कोई नेक आमाल वाला था, लेकिन बस मोहब्बत में आकर उसने 7 पत्थर रख दिए थे कि ये मेरी मस्जिद है। फौत हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या बना। उसने कहा था तो मैं बड़ा गुनाहगार, जब मेरा मुहासबा हो गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया कि इसको जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते मुझे पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जा रहे थे। एक दरवाजे पे पहुंचाया तो वहां पे देखा कि वो जो मैंने दुनिया में 7 पत्थर रखे हुए थे उसमें से एक पत्थर इतना बड़ा हो चुका था कि उसने जहन्नम का दरवाजा मुकम्मल बंद कर दिया था। फरिश्तों ने कहा कि ये दरवाजा तो बंद है, चलो अगले दरवाजे पे ले जाते हैं। फिर मुझे अगले दरवाजे पे लेके चले गए। वहां मैंने देखा कि एक और पत्थर था, वो इतना बड़ा हो चुका था कि उसने जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया था। फिर एक और दरवाजे पे ले गए। चुनांचे मुझे फरिश्ते जहन्नम के 7 दरवाजों पे ले गए और 7 दरवाजे 7 पत्थरों ने बंद कर दिए थे। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह 7 दरवाजे बंद हैं। अल्लाह ने फरमाया कि फिर जन्नत में ले जाओ। आखिर जाहिरी बात है कि बंदा जन्नत में जाता है या जहन्नम में जाता है। जब जहन्नम के दरवाजे बंद हैं तो जन्नत में ले जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की रहमतें किसी भी बंदे की बख्शिश के लिए बहाने की तलाश में होती हैं, लेकिन हमने कुछ ना कुछ कोशिश करनी है। मस्जिद की तामीर में अगर हम अपना सरमाया, अपना माल पैसा इस्तेमाल करेंगे, यकीनन अल्लाह बहुत गयूर है, बहुत गयूर है। वो कभी भी किसी का कर्जा अपने ऊपर नहीं छोड़ता। मेरे भाई, आप अंदाजा लगाएं कि मेरे पास जो कुछ है ये मेरा अपना नहीं है, मेरे अल्लाह का दिया हुआ है। अगर अल्लाह मुझे हुक्म दे कि अपने तन के जो कपड़े हैं ये भी मेरे हुक्म पे दूसरों को दे दो, फिर भी अल्लाह को हक हासिल है, क्योंकि ये मेरे कपड़े भी अल्लाह के दिए हुए हैं, ये मेरी पगड़ी भी अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह को हक हासिल है कि मुझसे ये मुतालबा करे, लेकिन अल्लाह मुझसे ये मुतालबा नहीं करता। अल्लाह मुझे कहते हैं कि अपने माल में से थोड़ा सा माल दे दो, और इसको भी अल्लाह ताला कर्ज के लफ्ज से ताबीर करता है। मन वल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मुझे कर्ज देना है। मुझे, मैं अगर किसी जाति से मांगता हूँ, आप कहते होंगे मौलवी साहब लगता है कि वैसे ही मांग रहे हैं, लेकिन मैं वजाहत कर दूं कि नहीं भाई, मैं आपसे कर्ज मांग रहा हूँ। आप मुतमईन हो जाते हैं कि ये मुझे लौटाएगा। अल्लाह ताला जब हमसे मांगता है तो बाकायदा हमें जो अल्लाह ने माल दिया है, फिर दोबारा वो कहता है कि ये माल मुझे कर्ज दे दो, ये अल्लाह का हम पे एहसान है। और कर्ज का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि जैसे कर्ज लौटाना बंदे पर लाजिम होता है, ऐसे ही अल्लाह ताला हमें यकीन दहानी कराते हैं कि इसका बदला देना मुझ पे लाजिम है, जैसा कि कर्ज लौटाना बंदे के लिए लाजिम होता है। तो मैं बड़ा गयूर, मैं तो कम गयूर हूँ। मुझे कोई बंदा कर्ज देता है तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं कल अदा करूँ, कल से पहले आज किसी तरीके से अदा कर लूं, मेरा जिम्मा फारिग हो जाए। तो मैं तो कमजोर सा बंदा हूं। अगर मेरा ये हाल है तो वो अल्लाह तो गयूर परवरदिगार है, वो किसी का कर्जा कभी भी अपने ऊपर नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला देता है और बंदे के तवक्को और तसव्वुर से भी ज्यादा बेहतर बदला देता है। हमारे हज़रत जी फरमाते हैं कि बाज़ लोग मालदार होते हैं, बाज़ माल की चौकीदार होते हैं। मालदार वो होते हैं जिनको अल्लाह ने माल दिया, फिर वो अपना माल अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में भी ये माल उनके पास, और यही माल आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाता है, तो वहाँ पे भी इनका माल इनका इंतज़ार कर रहा होगा। ये लोग मालदार हैं कि दुनिया में इनके पास माल है, आखिरत में भी अपना माल पहले से भेज देते हैं। दुनिया में भी मालदार हैं, आखिरत में मालदार हैं। तो मैं कुछ लोग माल के चौकीदार होते हैं। माल की चौकीदार वो होते हैं जो माल जमा करते हैं, गिनते रहते हैं, संभाल संभाल के रखते हैं, और बस खुश होते हैं कि इतने हो गए और इतने हो गए। लेकिन जो ही ये आंखें बंद हो जाती हैं, माल वारिसों के पास चला जाता है, ये बेचारे खाली हाथ दुनिया से चले जाते हैं।
पूरी जिंदगी चौकीदारी करते हुए गुजारी है, चौकीदारी करते रहे, तो ये लोग माल के चौकीदार हैं। हमें चाहिए कि हम मालदार बने, माल के चौकीदार न बने, अपने ऊपर भी खर्च करें और आखिरत के लिए भी ज़ख़ीरा बनाएं, और बाकी फ़कत चौकीदारी करना ये हमारे लिए कभी भी खैर का ज़रिया नहीं है। कई सारे वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो तवक्को रखते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी औलाद मेरे लिए बहुत खर्चा करेगी। मेरे भाई, जो औलाद से कोई तवक्को ना रखे, जो कुछ करना है खुद करें, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। जब आप अपने ऊपर तरस नहीं खाते और अपने लिए पहले से नहीं बेचते, तो आप ये तवक्को रखते हैं कि आपकी औलाद आप पे तरस खाएगी। ये ख्यालस्तो महालस्तो जुनून, ये खुशफहमी है। इस खुशफहमी से निकल जाए, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला दुनिया में भी उसका बदला देगा और आखिरत में भी बेहतरीन बदला देगा। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कितना टाइम लगता है? 6:09। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। करीम परवरदिगार, हम तेरे आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं, तेरे सामने दस्त बदुआ हैं। अल्लाह, हमारी मस्कनत पे तरस खा लीजिए, हमारी आजिज़ी पे रहम फरमा लीजिए। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे आइबों की पर्दापोशी फरमा। यार अल्लाह, हमें गुनाहों से पाक साफ ज़िंदगी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, या राहिमुल मसाकीन। तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम अभी तक नेक नहीं बन सके। यार अल्लाह, हमारे दिलों की तमन्ना और चाहत यही है कि हम भी नेक बन जाए। हमारे दिलों का हाल तू ही जानता है। अल्लाह, हमें नेक बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, नेक बना दीजिए। जितने लोग दुनिया में नेक बने हैं, कोई खुद तो नेक नहीं बन सका। तेरी दी हुई तौफीक से सारे लोग नेक बनते हैं। अल्लाह, हमें भी नेक बना दीजिए। गुनाहों से पाक साफ जिंदगी नसीब फरमा। जितने भी हजरात दूर करीब से चल के आए, अल्लाह सबको पता है यहाँ दुनिया तो तकसीम नहीं होती। तेरी रज़ा की तलाश में, तेरी मोहब्बत की तलाश में दूर करीब से आए हैं। अल्लाह, सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा। दुनिया और आखिरत की भलाई में नसीब फरमा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नसीब फरमा, जो बीमार हैं या घरों में बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जिनके वालिदैन अजीज़ व अकारिब फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दिलों में छुपे हुए गम होंगे, वो किसी को बता भी नहीं सकते होंगे। अल्लाह, तू तो दिलों के भेद जानता है। उन छुपे हुए गमों को ख़त्म फरमा दीजिए। सबको अपने अपने घरों की खुशियाँ नसीब फरमा। घरेलू नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील फरमा। लड़ाई झगड़ों को इत्तेफाक और इत्तेहाद में तब्दील फरमा। जो माली तंगियों का शिकार हैं, अल्लाह उनकी माली तंगी फराखी में तब्दील फरमा। सुकून इत्मीनान वाली ज़िंदगी अता फरमा। हमारे भाई मौलाना रशीद साहब और उनके रफ़क़ा ने जैसे ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया, अल्लाह इनकी खिदमत को भी कबूल व मंजूर फरमा। मस्जिद की तामीर के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, अल्लाह इनकी कोशिशों को बारआवर फरमा। जो साथी इनके रफ़क़ा हैं, ताउन कर चुके हैं, मज़ीद ताउन कर रहे हैं, उन तमाम हज़रात को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर, बेहतरीन बदला नसीब फरमा। जैसे तेरे महबूब ने फरमाया कि जो बंदा दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उनके लिए जन्नत में आलीशान महल बनवाता है। अल्लाह, ये तेरा घर इन तमाम हज़रात के लिए जन्नत में आलीशान महलात का जरिया बना दीजिए और यही घर इनके मरहुमीन के लिए सदका जारिया बना दीजिए। करीम परवरदिगार, जो इनके मुस्तक़बिल के मंसूबे हैं, मंसूबों की तकमील
جلیل میں آسانیاں پیدا فرما، اہل خیر کو اس طرف متوجہ فرما، مسجد کی تعمیر میں اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے ان کے دلوں میں القاء فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں، مسجد بنانا فقط کافی نہیں ہے، مسجد کے ساتھ مکمل وابستگی ضروری ہے۔ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو مسجدوں کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صاحب ساتھی تشریف رکھیں، لنگر کا اہتمام کیا گیا۔